बोलूं? हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन तो बायो का था, व्हाई इज नेचुरल इकोसिस्टम मोर स्टेबल देन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सेकंड ऑलराइट। क्वेश्चन भी बायो का था। फिर थर्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक दैट नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? Good. So I think noble gases are placed in separate group because they are totally inert. They do not react with other elements and do not form compounds. Therefore, they are kept separately in separate group in acting group. इसका ये आंसर लिखना था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अनुष्का। The next question है, magnesium and sulfur have different number of valence electrons, yet they have same valency. Explain. Yes. So magnesium has electronic configuration 282. It can lose 2 electrons, therefore it has valency 2. ठीक है। And sulfur has electronic configuration 286. It can gain 2 electrons to complete its octet and therefore it has valency 2. सर मैंने सर हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक सर है, आपने एक बार डेफिनेशन बताई थी ना। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, यू हैव गॉट फुल मार्क्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, first part. Identify the substance oxidized and the substance reduced in the following reaction. 4Na plus O2 gives 2Na2O. Sodium is oxidized because it is gaining oxygen. ठीक है, and oxygen is reduced. ठीक है, बस इतना लिखना था, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। नो एक्सप्लेनेशन, नो रीजनिंग वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर आपने रीजन लिखा है तो आपका रीजन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो नंबर कटेगा। ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट। Next question है, balance the following equation. NH4Cl plus CaOH twice gives CaCl2 plus NH3 plus H2O. हाँ, इसका 2NH4Cl हो जाएगा। ठीक है, और क्या था, किसके साथ रिएक्ट किया? सर 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 जय मंडल सर यस सर हाँ बोलो। सर अरे सर सर बोल रहे हो यार, बोलो तो, आगे बोलो। सर सर मेरे मार्क्स कितने हैं? सर मेरे मार्क्स कितने हैं? 5 बार क्यों बोल रहा है एक ही चीज को? जय मंडल, गूगल फॉर्म में 9 मार्क्स है और डिस्क्रिप्टिव में 20.5। ओके, अनुष्का, Yes, sir. 2NH4Cl प्लस दूसरा रिएक्टेंट क्या था? Sir, एक second. NH4Cl plus CaOH twice gives CaCl2 plus NH3 plus H2O. All right. So the correct answer was 2NH4Cl plus CaOH whole twice give rise to CaCl2 plus 2NH3 plus 2H2O. अगर आपने 2H2O की जगह पे सिर्फ H2O लिखा है तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। NH3 की जगह पे अगर आपने 2 नहीं लिखा तो पूरा नंबर कट जाएगा। और inorganic reaction must be completely balanced. Organic reaction may not be balanced, may or may not be balanced. ये inorganic है, आपको पता है, केमिकल रिएक्शन चैप्टर से है, इसलिए पूरी बैलेंस होगी तभी होगा मान्य इसके नंबर। हाँ बोलो बोलो स्नेहा। सर जो ये बैलेंस करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखनी रहेगी या जैसे पहले टेबल फिर उसमें ये इनटू करो ऐसा कुछ कुछ लिखना रहेगा? If it is 1 mark question then you can write directly. If it is 3 marks question then you have to write either table or steps. Sneha. Okay sir. All right. Next question. So next question, physics का fifth question. First, voltmeter is connected in series. What will happen when first voltmeter is connected in series or second ammeter is connected in parallel? If voltmeter is connected in series, we know that voltmeter has very large resistance. That is, it has almost infinite resistance. So if it is connected in series, then it will offer large resistance and the current in the circuit will get reduced, will decrease very much. ठीक है, बहुत कम हो जाएगी. When ammeter is connected in parallel, we know that ammeter is a device which has almost zero resistance. ठीक है, so if it is connected in parallel, then resistance will be reduced. Parallel resistance कम हो जाता है, resistance will further get decreased. As a result,
huge amount of current will flow. Because of this huge amount of current, heating will be large. That is I square RT. H is equal to I square RT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? Heating will be large and the emitter will get damaged. उससे आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि when emitter is connected in parallel, huge amount of current will flow and therefore emitter will get damaged. सर बट जब वो सीरीज में होता है तब भी तो करंट तो फ्लो होता ही है ना उसमें से। सीरीज में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा, पैरेलल में रेसिस्टेंस फर्दर डिक्रीज हो जाता है। सर अगर सिर्फ इतना लिखा है कि ह्यूज करंट विल फ्लो तो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक है। और सर मैंने इट विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट लिख दिया तो रॉन्ग है? करेक्ट, नहीं सही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही डैमेज होगा, सही है बेटा, मिल जाएगा नंबर। मिल जाएगा मतलब मिल गया है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is differentiate Mendeleev periodic table and modern periodic table. Okay, so Mendeleev periodic table is based upon increasing order of atomic mass. Atomic mass. Modern periodic table is based upon Atomic increasing number. order of atomic numbers. ठीक है, you can write even one point if you have written in paragraph. मान लीजिए आपने पैराग्राफ में लिखा, only one point will be accepted. But if you are writing in tabular form, then at least 2 points you should write. ठीक है, टेबुलर पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, पीरियड्स हैं, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं। और भी लिख सकते हैं। फिर मिनिमम 2 पॉइंट्स आर नीडेड इफ यू आर राइटिंग इन टेबुलर फॉर्म। इफ यू आर राइटिंग इन पैराग्राफ देन 1 पॉइंट इज इनफ, ठीक, बिकॉज इट इज 1 मार्क क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज कार्बन आइसोटॉप, है ना। तो कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ठीक है। सो इफ अब फिर क्या था इसमें कि वेयर यू विल प्लेस इट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इट शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट स्लॉट्स, because they are based on increasing order of atomic masses. If it is modern periodic table, then it is not needed to give separate positions or separate slots. They should be kept in same place because they are based upon chemical properties. But if it is not mentioned that it is Mendeleev or modern, then you can accept it as modern periodic table, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने लिखा जो मैंने पहले बोला वो लिखा, उसको फुल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा लिख रहा है कि since they have same chemical properties, they are placed in same slot according to modern periodic table because they have same atomic number, same electronic configuration and so same chemical properties. सिर्फ modern periodic table के respect में भी अगर बोला है then also he will get full marks because it is not mentioned in the question कि आपको किस periodic table के respect में ये बात बोलना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है मेंडलीव के रेस्पेक्ट में बोलना है तो मेंडलीव के रेस्पेक्ट में बोलना है, मॉडर्न के रेस्पेक्ट में बोलना है तो मॉडर्न के रेस्पेक्ट बोलना है, अगर नहीं दिया है तो फिर मॉडर्न के रेस्पेक्ट में बोलना है, या दोनों के रेस्पेक्ट में बोल सकते हो सेपरेटली। दोनों केसेस, तीनों केसेस में आपको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7, first part is compare the radii of two species X and Y. A, X has 12 protons and 12 electrons. B, Y has 12 protons and 10 electrons. Give reason for your answer. Correct. So X has 12 protons and 12 electrons. Y has 12 protons and 10 electrons. Means if it is same element, since protons are there, the element would be same, ठीक है। Electrons is less in case of Y, that means it has last 2 electrons. So configurations will be 282 and 2 and 8. Fine. अब इसके दो तरीके से आंसर आप लिख सकते थे। आपने लिखा है कई बच्चों ने कि X में 3 सेल्स हैं, 282, 3 cells are there, so it will have larger atomic size. Y has only 2 cells, it will have lesser atomic size, ठीक है। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि 282 में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, हेंस द effective nuclear charge or effective nuclear force of attraction in case of X would be less, so its size will be more X का, ठीक है। Y के केस में आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 8 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 ही है,
12 इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसलिए ये श्रिंक हो जाएगा और इसकी साइज छोटी होगी। तो इसमें लेकिन अभी तो इस बार टेस्ट में आपका मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया नंबर ऑफ सेल्स वाला, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ कब एक्सेप्ट होता है, व्हेन यू आर मूविंग इन ए ग्रुप, मींस इफ देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप। इसका परफेक्ट आंसर जो आपको लिखना चाहिए था कि एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा उसकी एटॉमिक रेडियाई कम होगी, जिसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम होगा उसमें एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगी। आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के रेस्पेक्ट में या आपको इसका आंसर लिखना चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। आगे से बोर्ड क्लासेस में आप ऐसी मिस्टेक ना करें। 282 वाली नंबर ऑफ सेल्स वाली, नंबर ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं जब हम एक ही ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तब। इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि दे आर मूविंग, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है इसका मतलब वो सेम एलिमेंट है। इट इज आस्किंग अबाउट whether you are knowing that X is the element and Y is the ion of it, ठीक है। Y इसका आयन हो गया, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है। अभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें दोनों में एग्जांपल्स, दोनों रीजन पे। नेक्स्ट सर बट हम जब पीरियड्स में मूव करते हैं तो हाँ। उसमें भी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते नहीं है ना? नहीं बढ़ते ना, तो वहाँ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का हम कॉन्सेप्ट चलाते हैं ना सेल्स में, सेल्स पीरियड में। लेकिन पीरियड इसमें में बढ़ रहा है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना? ये पीरियड है ही नहीं ना बेटा, ये तो ग्रुप की, ये तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम मतलब एटॉमिक नंबर सेम, दो अलग अलग एलिमेंट्स ही नहीं है, सेम एलिमेंट है ये स्नेहा। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो हम साइज के बारे में नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते क्योंकि आप सेम एलिमेंट में है, सेम एलिमेंट में नंबर ऑफ सेल्स कैसे कम ज्यादा हो जाएंगी। देखो जब उसने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो नंबर ऑफ सेल सेम रहती हैं, बस आउटर मोस्ट सेल एक वैकेंट हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का दो इलेक्ट्रॉन एक सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एक सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। अगर उसने छोड़ दिया तो आउटर मोस्ट सेल डिजनरेट नहीं हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, इट विल सर मेरा एक डाउट था सर। एक सेकंड, इट विल बी देयर, ठीक है। बस उसमें वैकेंट इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, नंबर ऑफ सेल 3 की 3 ही रहेंगी, ठीक है। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट इस केस में नहीं चलना चाहिए। इस बार आपने लिखा है क्योंकि मैंने ये बताया नहीं था आपको, और अभी आपने एक्सेप्ट किया। आगे से आप ऐसे अगर सेम एलिमेंट है या सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे इसको। अलग अलग एक ही ग्रुप में है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तब फिर आप नंबर ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जय मंडल, योर डाउट। हाँ सर, सर बायो के मार्क्स एडेड है क्या उसमें 20 में? जी हाँ एडेड है। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेहा, अनुष्का। Next question is, what happens to the valency along a group in the periodic table? Justify your answer. Valency along the group will remain same because all the elements have similar valence cell configuration. The outermost configuration same रहेगा, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, इसलिए वैलेंसी सेम रहेगी। आप चाहे तो किसी ग्रुप का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते थे, जैसे फर्स्ट ग्रुप ले लिया, हेलिना की रब से फरियाद, सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उनका वैलेंस सेल का आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सबका 1 इलेक्ट्रॉन सभी में है, इसलिए वैलेंसी सेम रहेगी। लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए आपको, ठीक, एक्सप्लेन करके। यस। Question number 8 अनुष्का। is, अच्छा उसकी आवाज, green, हाँ it आवाज can be fermented. Yes, sir. हाँ ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज ए वायर, ठीक है, विच इज स्ट्रेच्ड और उसकी लेंथ हो जाती है डबल। अच्छा ये नहीं है Grapes are like grapes. ग्रेप्स वाला, हाँ ग्रेप्स वाला 7th है, वो क्वेश्चन नंबर 7th है। 8th है, ओके ओके। ग्रेप्स वाले में लिखना चाहिए, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड व्हेन दे आर प्लग्ड आउट इन एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है, that is in absence of oxygen to produce alcohol. Since new substance alcohol is produced, therefore it is a chemical change. ठीक है, उसमें क्या बन रहा है, ग्रेप से, ग्रेप में क्या है, शुगर है, ठीक है, और शुगर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल,
ठीक है, सिंस sugar is getting converted into alcohol, it is a chemical change. बाकी बायो का आप फिर दुनिया भर फर्मेंटेशन वगैरह दुनिया भर कुछ लिखते रहो। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या लिखा, व्हेन ग्रेप्स आर in intact with the plant, then they have their own immunity system because which prevents them from fermenting, ठीक है। but when they are plugged out, ये गूगल का आंसर है, ठीक है, ये गूगल का आंसर है, ठीक है। इम्यूनिटी और ये सब, मतलब वहां पे वो क्या कर रहा है कि वो बायो के हिसाब से आंसर कर रहा है। और मैंने चेक किया गूगल में, सेम वर्ड टू वर्ड वही है, वर्ड टू वर्ड आपने टिपा है, उसे जो मिस्टेक की वो भी आपकी कॉमन मिस्टेक चली जा रही है, उसमें आपने अपना लॉजिक, अपना अंडरस्टैंडिंग अप्लाई नहीं किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मेजॉरिटी, मैं कहूँ 80% बच्चों ने क्या किया है, चीटिंग करके लिखा है गूगल से, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता अपने क्लास के बच्चों से ये सब नॉनसेंस। जब इतने प्रेम से इतने डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक चीज का पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है, इतना जिस तरीके से मैंने चैप्टर्स के नोट्स और पीडीएफ दिए, किसी टीचर ने दिया आपको? बोलो। नो सर। हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मैं अगर आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो आप भी मेरे पीछे बैकग्राउंड में मेहनत करें, और ये उल्टी सीधी हरकतें ना करें, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होना है, ठीक है। इससे आपका बोर्ड का रिजल्ट नहीं सुधरना है। अगर आपको अपना बोर्ड का रिजल्ट सुधारना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, तो मेहनत करो। ये शॉर्टकट तरीके अपनाओगे तो यहाँ तो ठीक है बेटा, सब कुछ है, बोर्ड में क्या करोगे? और कौन से इसके मार्क्स जुड़ने हैं बोर्ड में? आपको जुड़ने भी नहीं है, तो फिर आपको सेल्फ असेस करना चाहिए था प्रॉपरली। मेरे घर में सोचो, खतरा है, मुझे बहुत बड़ा खतरा है। मेरे घर में दो स्टूडेंट हैं, और दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में, सब में, हर फाइल में खतरनाक पासवर्ड डाला रहता है। तो इनका ये कहना रहता है, पापा ने ऐसे हर चीजें पासवर्ड लगा रखा जैसे हम तिजोरी चोरी कर रहे हैं उनकी, ठीक है। हर फाइल में, हर क्वेश्चन पे, इवन नोट्स में जो आपके रहते हैं, सब में पासवर्ड डाला, किसी को नहीं। जब तक मैं नहीं खोलूंगा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इनको बैसाखी पकड़ाएं। अभी बैसाखी पकड़ के चल तो लेंगे, लेकिन आगे चल के गड्ढे में गिर पड़ेंगे, ठीक है। जैसे जो फैसिलिटीज बाकी बच्चों को मिल रही, वही सारी फैसिलिटी इनको भी मिलनी चाहिए, तब पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो इनके सामने तो मैं खुद ही बैठा था, हिम्मत क्या, मजाल क्या कि क्वेश्चन अगर इन्होंने कुछ इधर उधर कर ले, इधर उधर किए तो तुम्हारे नंबर गए। सही होंगे तो इनके तो मैं पूरे काट दूंगा, बाकी के काटूं या ना काटूं। तो इनको तो और भी लिबर्टी नहीं, इनके लिए तो और बड़ा खतरा है, खासतौर साइंस के पेपर में। हाँ, तुमको जितना पढ़ना है, जितना पूछना है, ये तुम्हारा क्या है, बेनिफिट है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा टीचर भी 24/7 आवर्स अवेलेबल है, बाकी बच्चों के साथ नहीं है। तो उनके भैया हैं, बहन है, दादा दादी जो भी है, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछ सकते। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट एडवांटेज आप नहीं ले सकते मुझसे। जो भी पढ़ना है, जितना डाउट है, वो सब डाउट्स आप पूछ लो, जितनी बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो। लेकिन इसके लिए मैंने आपको भी अलाउ किया है, यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू आस्क, ठीक है, आइदर इन द क्लास और इन द व्हाट्सएप, ठीक है। इसके अलावा कोई एडवांटेज चाहोगे तो थप्पड़ पड़ेगा एडवांटेज में, और कुछ नहीं मिलेगा। इनको तो मैं मार भी सकता हूँ, आपको तो मार भी नहीं सकता, आप दूर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 9th क्वेश्चन नेक्स्ट है, वो बायो का है। फिर 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, a हाँ 4 ohm resistance wire is stretched to double its original length. ओके। Calculate the new resistance of the wire. अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, स्ट्रेच्ड, ठीक है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। एक वायर उसको स्ट्रेच किया है। जब सेम मटेरियल है, आप उसको स्ट्रेच करोगे, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम कैन नॉट चेंज। तो अगर लेंथ उसकी डबल होगी तो एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। अगर आप सिर्फ लेंथ को डबल करके 12 करके कैलकुलेट करोगे तो आंसर 8 ओम आएगा, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन को अगर आपने हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 ओम, ठीक है। तो इसका आंसर 16 ओम इज द करेक्ट आंसर। अगर 8 आ रहा है तो आंसर गलत है, आपने सिर्फ उसको लेंथ को डबल किया, एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ नहीं किया। हाँ, अगर क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसी होती कि देयर इज ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, a similar wire of double of its length is taken, what will be its resistance, तब आप उस केस में 8 ओम कर सकते। सिमिलर वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ, तब आप 12 लेते, फिर वहां पे एरिया क्रॉस सेक्शन हाफ करने की जरूरत नहीं थी।
जब भी ऐसा है कि एक वायर है उसकी लेंथ को आपने स्ट्रेच करके डबल किया तो एरिया अपने आप हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम शुड रिमेन सेम। सर तो अनदर वायर लेंगे फिर उसमें वॉल्यूम सेम है लिखा रहेगा क्या ऐसा? अरे जब लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन, सिमिलर वायर बोला ना बेटा, सिमिलर वायर, अनदर सिमिलर वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब लेंथ डबल है और सिमिलर है, इसका मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन इज सेम। सिमिलर ठीक वर्ड है को सर। पकड़ो इसको, ठीक है। सर जिनका 8 आया उनको कितने मार्क्स मिले? उनको 0 मिलेगा। सर फॉर्मूला के मार्क्स? फॉर्मूला का 0.5 मिला है। ठीक है सर। 0.5 फॉर्मूले के मिले। अच्छा, गूगल फॉर्म में एक ऐसे ही क्वेश्चन था रेसिस्टिविटी वाला, हाँ सर। हाँ सर वो सही था फंस मेरा। गए, फंस गए उसमें बहुत से बच्चे। रेसिस्टिविटी कहाँ चेंज होती है यार? रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। आंख मूंद के जल्दबाजी में तुम लोगों ने क्या किया, टाइम कम रहता है, जल्दबाजी में धड़ 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 करना है एकदम से सर वो अंडर। 15 मिनट में हार्ट बीट इतनी तेज होती है ना, कुछ समझ नहीं आता। तब बल्कि लेकिन पहले तो लग रहा था कि वो 1/4 हाँ, टाइम्स हो रहा है ना, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हाँ, रेजिस्टेंस को, तो लग रहा था ले- कि क्वेश्चन में शायद से कुछ गड़बड़ हो गई होगी लेकिन तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, खासतौर से जब एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं। हम आपको लेसन बता रहे हैं, एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें टाइम, यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। अभी जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, आपको 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में खत्म करना है। अभी आप देंगे ना नीट का, जेई का 200 क्वेश्चन, और आपको 2 आवर्स में, मतलब 120 मिनट्स में, आपको एक क्वेश्चन के 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो आपको 15 क्वेश्चन के लिए करीब करीब 20 या 25 मिनट मिल गए, दो इट वॉज 25 मिनट, लेकिन सुरुचि के कई बार वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था, इसलिए 25 मिनट्स मिल गए। इतना टाइम किसी कंपटीशन में नहीं मिलता, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से, ठीक है। सो यस आप क्वेश्चन का वर्ड जैसे देखा, रेसिस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन एरिया लेंथ, और ये लेंथ बढ़ा दिया, एरिया का सेक्शन कम कर दिया, व्हाट इज रेसिस्टिव, अरे रेसिस्टिविटी पूछता है, खत्म बात, लो नो चेंज। तुरंत ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये तब आता है व्हेन यू हैव प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। एक बार दो बार पढ़ने से नहीं आता है, ठीक है। ऑलराइट, सर तो हाँ बेटा। सर मेरे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने आया है? फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारा, बायो का मैं कैसे बताऊं यार, वो तो टोटल हो गई लिस्ट, ठीक है। एक सेकंड, बायो की लिस्ट भी है। सो यस भाई, बार के बायो में 7.5 है, ठीक है, आउट ऑफ 10। और इस टोटल कितने थे? टोटल है बेटा आपके 19.5, 19.5 में से 7.5 माइनस कर दीजिए, 12 आए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो आई सर थिंक, क्वेश्चन अच्छा है, एक पार्ट हाँ बस। हाँ बताओ। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी वेरी हाई और वेरी लो? जस्टिफाई योर आंसर। The resistance of an ideal emitter should be very very low, so that resistance is low, it can offer more and more current to the circuit. अगर रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो कम करंट सप्लाई करेगा, वो करंट सप्लाई करेगा, इसका मतलब देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए रेसिस्टेंस एमीटर का लेस होना चाहिए। लेस होगा तो क्या होगा, एक तो हीटिंग कम होगी I²RT के फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, ज्यादा करंट ये सप्लाई करेगा सर्किट में, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, एनी डाउट? यस सर। अच्छा, अब वैसे भी अब तो 21 से आपकी डाउट क्लासेस चालू हो रही हैं। फॉर आस्किंग योर डाउट्स यू कैन कम टू स्कूल, ठीक है। आपको पीडीएफ आया होगा स्कूल की तरफ से टाइमिंग और यस अलॉटमेंट यस में, सर आया है। ठीक है। बट दैट विल बी यस सर। एक्सक्लूसिवली फॉर आस्किंग डाउट्स, इफ यू हैव, इफ यू डोंट हैव नो नीड, ठीक है। इफ यू हैव सर डाउट, पर डाउट तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कर लेते थे ना? कर लेते हो ना, अभी भी करेंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे डाउट। सर तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑनलाइन क्लासेस आपकी जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेंगी। वो एक्चुअली डाउट क्लास के लिए है, कोई गाइडेंस वगैरह है जिसको आना है, अगर आपको जरूरत फील होती है देन यू आर वेलकम। इफ यू डोंट नीड, नो प्रॉब्लम, योर टीचर्स आर ऑलवेज ऑनलाइन विथ यू। सर एक ओके, डाउट है। हाँ बोलो सचिन। सर वो एमीटर में रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना?
एमीटर का रेसिस्टेंस हमेशा जीरो ही होता है बेटा, ऑलमोस्ट जीरो होता है, हमेशा कम होता है। रेसिस्टेंस कम होगा तभी तो एमीटर क्या करेगा, करंट को, मतलब रेसिस्टेंस कम होगा तो जो सर्किट से करंट जा रहा था उस करंट को जाने देगा। अदरवाइज एमीटर क्या करेगा, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, अगर उसका रेसिस्टेंस ज्यादा हुआ तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आरएस बहुत ज्यादा हो जाएगा, आरएस ज्यादा हो जाएगा तो फिर करंट ही फ्लो नहीं होगी। यस इसलिए रेसिस्टेंस उसका कम होना चाहिए ताकि जो उसमें करंट फ्लो हो रही है वो उसको जाने दे। ठीक तो है, सर रेजिस्टेंस कम करने के लिए अपन पैरेलल में लगाते हैं। नहीं, एमीटर को तो सीरीज में ही लगाते हैं, पैरेलल में अगर आप एमीटर को लगा दिए तो फिर रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, जितना है उससे भी कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस सर्किट का कम हो जाएगा, सर्किट का रेसिस्टेंस अच्छा। कम हो गया, उसमें सर्किट का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, जब सर्किट का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगी तो आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से हीटिंग ज्यादा हो जाएगी और मीटर डैमेज हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। यस वो पैरेलल कनेक्शन अलग चीज है, वो सर्किट के साथ कनेक्शन है पैरेलल। एक आइडियल सिर्फ इंडिविजुअल एमीटर की बात है तो उसका रेसिस्टेंस लो होना चाहिए। ओके सर, ओके सर। ओके फाइन, सो इट्स 6:05. Shall we start the new chapter right now or you have any doubt? Okay, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। Today we are going to start another chapter of chemistry, that is acid, bases and salts. ठीक है, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का। ठीक है, दैट विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग। सर मैग्नेटिक इफेक्ट तो हट गया है ना? नहीं बेटा, उसका थोड़ा सा उसमें से कुछ कुछ हटा होगा ना, पूरा थोड़ी ना हट जाएगा। पार्ट हटा है उसमें से। थोड़ा सा पार्ट हटा है उसका बस। हाँ, कार्बन कंपाउंड और मेटल नॉन मेटल का 80% हट गया है, सिर्फ 20% दोनों में बचा है केमिस्ट्री में। Okay, now I am going to share the screen. Okay, children. So, can you see the screen now? Yes sir. Yes, sir. What is the first line heading? Acid, base, and Acids. salts. And acids. Acid, bases and salts. Sorts. ठीक है, okay. See, here we have acids. Acids are sour in taste. sour का मतलब क्या होता है बच्चों? खट्टा। खट्टा। So, acids are sour in taste. Do we need to taste acids? पहला क्वेश्चन, क्या हमको एसिड टेस्ट करना चाहिए? बोलो। हाँ, Some ऑर्गेनिक है तो। अच्छा, ऑर्गेनिक है तो ठीक है। अगर ऑर्गेनिक नहीं है, लैब में है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड भी सौर होगा? सर वो कुछ ज्यादा ही सौर होगा। सर पर हम जल जाएंगे फिर बाद में आते हैं। नहीं, वो होगा सौर, लेकिन उसको बताने के लिए फिर हमारी जीभ काम नहीं करेगी कि सौर है कि बिटर है, वो हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर हम लिख के दे सकते हैं कि सौर है कि बिटर है, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है, so acids are sour in taste, that means all the food items which have sour taste contains acid. All right, examples like lemon, ठीक है, कर्ड, टैमरिंड। कर्ड तो मीठी होती है ना? शक्कर डालने पे नहीं, मीठी नहीं, शक्कर जाती है। डालने पे शक्कर डालने के बाद होती है। शक्कर डालने के बाद मीठी होती है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, लेमन, कर्ड, टैमरिंड क्या होता है? हल्दी। हल्दी। ओ भाई, हल्दी टार्टरिक बोलते हैं, हल्दी वो होती है सर टर्मरिक। टर्मरिक। टर्मरिक होती है। इमली टैमरिंड पूछा है, इमली। इट इज टैमरिन। टैमरिन मीन्स इमली, अनराइप फ्रूट्स एक्सेट्रा। कच्ची कैरी। ठीक है, अनराइप फ्रूट जैसे कैरी एक्सेट्रा, और ऑल sour in taste. So since they are sour in taste, they contain some acids. ठीक है,
सर उधर मिल्क भी बना है, मिल्क तो नहीं होता। अरे रुको भाई, मिल्क उसमें दही भरी है, मिल्क नहीं है वो। हाँ। ठीक है, ओह, as these items contain acids, hence these are sour in taste. Chemical substances that are detected commonly by their sour taste are acids. Okay, ऐसे सभी substances जो sour in taste होते हैं, they all are acids. Now types of acids. Depending upon the source of origin, acids are classified into two types: natural acids and mineral acids. ठीक है, एक है नेचुरल एसिड और दूसरा है मिनरल एसिड। ठीक, सो व्हाट आर नेचुरल एसिड्स? एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस सच एज प्लांट्स। एक सेकेंड प्लीज, ये एंटीवायरस सबसे बड़ा वायरस होता है। ओके, सो natural acids are obtained from natural sources such as plants and animals. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल होते हैं कि आर्टिफिशियल होते हैं बच्चों? नेचुरल। नेचुरल। Okay, so all those acids which are obtained from plants and animals are called natural acids. Natural acids are also known as organic acids. Okay, here you can see some examples and beautiful pictures are there. Take example first, citric acid. Citric acid is obtained from citrus fruits. जो खट्टे फल होते हैं, जैसे क्या क्या है इसमें बताओ, गिनाओ कौन कौन से फल हैं पिक्चर में। ऑरेंज है, लेमन है, ठीक है, मौसमी रेड है, रेड कलर का लेमन। विनेगर। इसमें पहली पिक्चर में विनेगर कहाँ है बेटा? It is citrics. All those fruits which are sour in taste are called citrus fruits. ठीक है, और ये citrus fruits में कौन कौन से हैं? ऑरेंज है, मौसमी है, लेमन है और आपका अनार भी है इसी में। They all contain हाँ, सिट्रिक नहीं आता, वो पकने के बाद मीठा होता है, उसके पहले वो सिट्रिक ही होता है। ठीक, नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, 2 to 10% aqueous solution of acetic acid is known as vinegar. What is vinegar? 1 ले लो, 1 से 10% aqueous solution, मतलब 90 ml वाटर है, उसमें 10 ml के आसपास क्या एसिड? एसिटिक एसिड है। See, such solutions are called vinegar, and vinegar you know where it is used? It is used as preservative for pickling. It is used केक in बनाने में, केक बनाने में, चाउमीन बनाने में, ढोकला बनाने में, ठीक है, पास्ता बनाने में, और कितना गिनाऊं? ठीक है, श्रेया तो मेरे को खाना बनाना सिखा देगी। ऑलराइट, सो सर मुझे भी तो आना चाहिए। अच्छा, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, अनदर इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक सर एसिड तो इसका काम क्या होता है? प्रिजर्वेटिव है, और एक तो प्रिजर्वेटिव है मतलब फूड आइटम को स्पॉइल होने से बचाता है। दूसरा यूज क्या है कि इसको सॉर टेस्ट इम्पार्ट करने के लिए है। फूड आइटम को सॉर टेस्ट अगर देना है, खट्टापन देना है, तो उसके लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। इट इज एडिबल एसिड। ठीक है, नेक्स्ट टार्टरिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, बटर, ऑल दिस। ठीक, देन टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड, इमली। अच्छी लग रही इमली? यस सर। खाया है कभी? यस सर। बहुत खाया। आजकल के बच्चे खाते नहीं ये सब चीजें। ठीक है, सो टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन टोमेटो एंड स्पिनच आल्सो। ठीक है, स्पिनच में भी होता है लेकिन वहाँ कम अमाउंट में होता है, टोमेटोज में ज्यादा होता है। इसलिए जिन लोगों को किडनी में या गैल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम होती है, दे आर एडवाइज नॉट टू यूज टोमेटो, क्योंकि टोमेटो में क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और आप जो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं उससे सब में क्या होता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम और ऑक्सैलिक एसिड मिलके एक सॉल्ट बना लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट जो सॉल्ट है वो वाटर इंसोल्युबल सॉल्ट है, इसलिए वो किडनी में या गैल ब्लैडर में जाके फंस जाता है, धीरे धीरे स्टोन बन जाता है, जिसको हम किडनी का स्टोन कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से पेन चालू होता है। तो जो जिनको भी किडनी में प्रॉब्लम है, इसकी स्टोन की प्रॉब्लम होती है, दे आर एडवाइज नॉट टू ईट टोमेटो। तो सर जिसको प्रॉब्लम नहीं होती उसके में स्टोन नहीं बनता होगा? नहीं,
क्योंकि उनकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है। जिनकी किडनी वीक होने लगी या गैल ब्लैडर वीक होने लग गया, उनको दिक्कत होती है, फिर उनका फिल्ट्रेशन रुकने लगता है। जिनकी प्रॉपर काम कर रही है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम चालू हो गई तब के लिए है। नेहा, सर तो इन एसिड्स में ऐसा अलग अलग नाम क्यों है, क्या अलग होता है? इनके अंदर एसिड अलग अलग होते हैं, इनका फॉर्मूला अलग अलग है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अलग अलग है। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी इनके फॉर्मूले बताऊंगा सबके में। सर हाँ जी, एनिमल्स में से कैसे मतलब एसिड ऑब्टेन करते हैं? क्यों? मिल्क कौन देता है? प्लांट्स, नहीं, एनिमल। एनिमल ही देते हैं मिल्क। और ये चींटा दिख रहा है आपको, एंड मस्त काटता है ये, है ना? अगर पैर में कहीं फंस जाए तो अच्छा काटता है। अच्छा, जब ये चींटे काटते हैं, एंट्स काटती हैं, तो दर्द होता है? दर्द होता है कि मजा आता है? दर्द होता है। कैसा दर्द होता है? दर्द होता है, ठीक है। दर्द होता है, क्यों दर्द होता है? बिकॉज वेन दे बाइट, when they sting, they impart formic acid inside our skin. They inject formic acid inside our skin. Of acids are always corrosive and they produce burning sensation, they produce swelling. ठीक है, तो जब ये काटते हैं तो हमारे स्किन के अंदर क्या चला जाता है? फॉर्मिक एसिड। अब वो फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है। आप ये मत बोलो कि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। वीक एसिड तो है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जब स्किन में जाता है तो बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग होती है और पेन होता है। हनी बीज में क्या होता है? हनी बीज में भी फॉर्मिक एसिड होता है। वैक्स जो होती है, जो जलेबी के ऊपर घूमती हैं होटलों में, वो जो बनाते हैं ना जलेबी के सर ऊपर, बेसिक होता है। में तो बेसिक होता है ना। वैक्स में बेस होता है, ठीक है। एंड और हनी बी में फॉर्मिक एसिड होता है। मैं बताने वही जा रहा था आपको, वैक्स में बेस होता हाँ है। ये 7th में एक क्वेश्चन पूछा हाँ, था। और हनी बी इसको में सबने गलत किया था। फॉर्मिक, हनी बी सिर्फ और मैंने सही किया था। अच्छा, स्नेहा तो बहुत अच्छी है, उसने सही किया था। ताली बजा दो सब मुझे स्नेहा पता के नहीं लिए। था। ओके, मैं सो भी वही था। नेक्स्ट इज मिनरल एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स। पहला नेचुरल हो गया। एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो, मिनरल्स हैं, जैसे सल्फर है, कार्बन है, कंटेंट है, उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो उनके ऑक्साइड्स बनेंगे। इन ऑक्साइड्स को जब हम वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? एसिड्स बनेंगे, ठीक है। So these acids which are obtained by dissolving non-metal oxides in water are mineral acids, or those acids which are prepared by some minerals are known as mineral acids. Example, carbon dioxide gas when dissolved in water forms carbonic acid. Carbonic acid का formula H2CO3. Sulfur dioxide gas when dissolved in water gives H2SO3, sulfurous acid. Sulfur trioxide gas when dissolved in water produces sulfuric acid. P2O5 phosphorus pentoxide, ठीक है, प्लस H2O give rise to H3PO4 phosphoric acid. अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, जो ये ग्लो वॉर्म होते हैं, जुगनू जो रात में चमकते हैं, वो क्यों चमकते हैं? यस, यस भाई बार, स्नेहा, व्हाई डू ग्लो सर वॉर्म्स? कुछ वो छोड़ते हैं एसिड जैसा शायद। Yeah, they excrete out, they urinate white phosphorus, P4. P4 फॉस्फोरस है, उसको यूरिनेट करते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं। और जैसे वो P4 एयर के कांटेक्ट में आता है, इट बर्न्स, ठीक है। फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस ऑलवेज बर्न्स व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर विदाउट हीटिंग, तो वो जल जाता है एकदम से। P4 प्लस O2 गिव राइज टू P2O5, ठीक है, वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। वही सही फॉस्फोरस रिएक्शन उनके बॉडी के अंदर होता है? नहीं बेटा, बाहर होता है। वो तो यूरिनेट किया, यूरिन जैसे उसको एक्सक्रीट किया सर P4, तो उससे चिपका हुआ क्यों रहता है ये ऐसा ग्लो? तो स्किन पे ही चिपका रहेगा ना वो, एकदम से। उनका स्किन लिक्विड नहीं होता, वो सॉलिड है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उनका क्या है? सॉलिड है, वो उनके स्किन पे ही लगा रहता है। और उसी जैसे एयर के कांटेक्ट में इस स्पार्क के साथ ये जल जाता है, राइट। फॉर्म्स P2O5. P2O5 plus 3H2O give rise to H3PO4. Some examples of mineral acids are hydrochloric acid. Yes beta. Sir, can you define mineral? Minerals
are those materials which are actually the compounds of metals or non-metals which are dug out from the earth crust. Minerals are the compounds of metals or non-metals containing a lot of impurities and earthy particles which are dug out from earth crust. जैसे कोल है, बॉक्साइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, सिनेबार है, ठीक है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। ठीक, क्यों? इनको अर्थ क्रस्ट से डग आउट करते हैं और ये मेटल्स या नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं और इनके साथ ढेर सारी इम्प्यूरिटीज होती है, जिसमें से अर्थन पार्टिकल्स भी हैं, जैसे सॉइल भी है, सैंड भी है, ये सब, इनको मिनरल्स बोलते हैं। फिर इन मिनरल से हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा मेटल्स और नॉन मेटल्स को बाहर निकालते हैं। स्नेहा? सर तो ये जो आपने मिनरल एसिड्स के एग्जांपल लिखे हैं, इसमें CO2 H2 में मिनरल कौन है? CO2 और H2 एक्चुअली इसमें मिनरल कोई सा भी नहीं है। मिनरल क्या है? कार्बन, मतलब कोल। मिनरल क्या है? सल्फर। ठीक है, तो पहले कार्बन और सल्फर को जला के ये गैस बनाई गई है, फिर इस गैस को वाटर में डिसॉल्व किया गया। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स? ओरिजिनल सोर्स इज आइदर कार्बन और सल्फर और फास्फोरस। ओके सर। ठीक, ओरिजिनल सोर्स तो वो मिनरल्स है, फिर उन मिनरल्स को बर्न किया गया तो ये गैसेस बनी, ये गैसेस को वाटर में डिसॉल्व किया, एसिड बना। नाउ एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड are some most commonly used mineral acids. As mineral acids are prepared in laboratories, thus mineral acids are also known as man-made or synthetic acids. ठीक है, there are 3 bottles. ठीक है, ये बॉटल आपको लैब में भी दिख जाती है। ठीक है, एक में क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरे में नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है बेटा? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन और क्लोरीन से। क्लोरीन नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके। Correct. When hydrogen chloride gas is dissolved in water, then hydrochloric acid is formed. ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड, सिर्फ HCl लिखा है और गैसेस में, मतलब वो एसिड नहीं है। ठीक है, that is hydrogen chloride gas. When hydrogen chloride gas is dissolved in water, then it forms hydrochloric acid. सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है? When sulfur trioxide gas, SO3 gas is dissolved in water, it forms sulfuric acid. नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है? When NO2 gas, nitrogen dioxide gas या nitrogen pentoxide gas, oxides of nitrogen are dissolved in water, then they form nitric acid. अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा विस्कस या सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पतला सा होता है, मतलब लिक्विड जैसा दिखता है, नाइट्रिक भी लिक्विड जैसा दिखता है, लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑयल जैसा दिखता है, थोड़ा सा, बहुत सा गाढ़ा सा होता है अगर कंसंट्रेटेड है तो। ठीक है, it is also known as king of acids because maximum number of compounds can be prepared from sulfuric acid. So the time says, children, it is 4:22 and we'll stop our class today, and the strong acid, weak acid and classification of acids we'll study in the next class. All right, now you can switch on your camera. ओके, सो समझ में आया? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, बस इतने सबका बेसिक नॉलेज है, रिकैप्चुलेशन है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ा है। उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने उसमें आपको खट्टे पीटे अलग अलग टेस्ट आपके मुंह में डाल दिए। ठीक है, किसी को नींबू पसंद है, किसी को इमली पसंद है, किसी को चींटे कटवाना अच्छा लगता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर के लिए। क्यों शमित, अच्छा लगता है चींटे पकड़ना? नहीं लगता। ऑल राइट, सो गुड, होप यू ऑल शुड रिमेन हैप्पी। ठीक है, जैसे खुश दिख रहे हो ऐसे ही सब खुश रहो, अच्छे नंबर लाते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो, बस बेईमानी मत करना। मेरे अच्छे ईमानदार बच्चों की तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल राइट, सो नाउ यू कैन जॉइन योर हैंड्स एंड चैंट शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम। Now you can log out, children. Sairam sir, Okay, thank you. sir. Sairam sir, thank you sir. Sairam sir, thank you sir. Thank you, sir. Sairam, Sairam. Sairam sir, thank you sir.
साई राम बेटा। राम सर। साई राम।